Let G be a finite abelian group and A and B are elements of group G with order of A as M, order of B as N, which of the following are necessarily true? A part, order of AB is equals to Mn. B part, order of AB is equals to LCM of M comma N. C part, there is an element of G whose order is LCM of M comma N. D part, order of AB is equals to GCD of M comma N. Part B question. Try this. Third option, C. Yes. What was your approach? मैंने तो इसको ऐसे सोचा कि अबेलियन है तो दैट मीन्स ए बी इज इक्वल टू बी ए, दैट मीन्स ए बी ए ऑपरेशन बी और बी ऑपरेशन ए, है ना? मतलब ये किसी एक एलिमेंट के इक्वल होना चाहिए ना, जो जी का ही एलिमेंट होगा, राइट? तो यहाँ पे हमें ऑर्डर डिफाइन है एम और एन. अब हमें ये नहीं पता कि ये एम और एन को प्राइम है कि नहीं, बट इतना है कि अगर ये इनका जो ऑपरेशन एक थर्ड एलिमेंट के इक्वल है तो उस थर्ड एलिमेंट का जो वो होगा ऑर्डर डेफिनेटली क्या होगा कि इनका एलसीएम ही होगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल होगा. या कोई एग्जांपल लेके भी कर सकते. If I take group G as simple 1 comma minus 1 only under multiplication, then order of 1 is 1. बट अगर यहाँ पे क्योंकि कहा नहीं हुआ कि A is not equal to B, it is not mentioned that A is not equal to B. So if I take A as minus 1, B as minus 1, then order of A, what will be order of A? Order of minus 1. This one 2 हो जाएगा फिर. Similarly, order of B, this will be also 2. This means that this is M, this is N. So A part is saying that order of AB is equals to Mn. This means that this is equal to 4, and order of AB means minus 1 into minus 1. This is order of 1. It is 1. Clearly they are not equal. Option A is discarded. Similarly, option B, order of AB is equals to LCM of M comma N.
Again, LCM of m comma n. This is LCM of 2 comma 2, which is 4, but order of AB is 1. Option D, order of AB is equals to GCD of m comma n. GCD of GCD of 2 comma 2 is 2, but order of AB is 1. So all the options are discarded. So answer is option C. Let G be a group. Suppose order of G is equals to P square Q, where P and Q are distinct prime numbers satisfying Q is not congruent to 1 mod P. Which of the following is always true? A part, G has more than 1. P silo subgroup. B part, G has a normal. P silo subgroup. C part, the number of Q silo subgroups of G is divisible by P. D part, G has a unique Q silo subgroup. There is a small hint for this question. Do by taking any example whose order will be like this, P square Q type. इसका एक तो डी ऑप्शन है. This is MCQ. MSQ है. MCQ.
एमसीक्यू है ना, तो इसमें ए तो नहीं आएगा, और डिविजिबल बाय, वैसे तो दोनों के ही वन वन है, तो डी ऑप्शन है, फिर यूनिक तो डी में ही आएगा। एग्जाम्पल क्या लिया आपने? मैंने लिया 45 3 स्क्वायर इंटू 5। तो क्यू पी 3 हो गया, क्यू 5 हो गया। 3 square into 5. Okay, and clearly And 3 is not congruent to Q is not congruent to 1 mod P. 1 mod p। अच्छा, मैंने पी को वो ले लिया था। हाँ, मैंने ठीक है, पी को 3 लिया था, क्यू को 5, ठीक है। तो 5 इज नॉट कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 3, ये भी है, ठीक है। So by तो Sino's अगर हम third सब theorem, बनाते हैं अलग अलग, तो n 5 3, का आएगा 1 प्लस n के, 1 प्लस 5 के, which divides 3. 9। अच्छा, ठीक है, तो केस में 0 ही आएगा ना, और n 1 आएगा फिर। K0 means n3 is 1 ओनली 1 आया इसमें, this और means सिमिलरली 5 वाले में भी 1 ही आएगा। yes. Unique means normal भी है. Here also K is 0 and 5 is 1. Unique, and this is normal. Okay. So by this, option number A, G has more than one p silo subgroup. This will be discarded. Okay. और बाकी remaining options B, C, D are satisfied, but by taking example, I cannot take any option. I can only discard options. So A is discarded. Now I have to change the example. Okay. Now if I take order of group G as 20 ले लें। 20. नहीं, पर 20 में प्रॉब्लम आएगी, 1 आ जाएगा ना। हमें ऐसा 1 लेना है जो सेटिस्फाई नहीं करे, नहीं करे हम, कि ऑप्शन डिस्कार्ड करने हैं हमें। तो 5 स्क्वायर इंटू 7, 5 स्क्वायर इंटू 7 ले सकते हैं, दैट मीन्स 175। 5 square into 7. So if I take P as 5, Q as 7, then Q is not congruent to 1 mod P. Okay. Then 5 divisible by 7, 1 plus 5k 7, तो k 0 लेंगे इसमें भी, एंड यूनिक आ गया यहाँ पे भी, यूनिक आ गया, इसमें भी दोनों में यूनिक ही आ रहा है। सेम पॉसिबिलिटी आ गई ना। अगर 605 लेके देखें, 11 square into 5. P is 11, Q is 5. 5 is not congruent to 1 mod 11. तो n 11 1 plus 11 की divides 5, n 5 1 plus 5k divides 11। वन सेकेंड, यहाँ पे जब 1 plus 7 के करे थे, इट डिवाइड्स 25 ऐसे होता था,
अच्छा हाँ ये मिस्टेक कर दी। फिर से देखें इसको एक बार, k is 0, k can be 0, k 1, नहीं आएगा। k 3, k 4, आएगा फिर भी नहीं। हम्म यहाँ पे भी हमने सेम मिस्टेक करी, यहाँ पे 9 आना था, आएगा फिर भी नहीं, पर वो एक मिस्टेक कर दी। हम्म Now here it will be 121, so here हम्म k will be 0, here हम्म k can be 2 0, 2 also, बस और नहीं आएगा। 24, और ज्यादा से तो के आ जाएगा 124। ठीक है। So this means that G has no unique 5 silo subgroup. So by taking this, option D is also discarded. G has a unique Q silo subgroup. Here Q was 5. So option D is discarded. And here I am having only one 11 silo subgroup. पी साइलो। So number of 5 silo subgroups of G is not divisible by 11 na? So option C is also discarded. Okay. So answer बी will रह गया। be B. वैसे भी हमने हर केस में ऑब्जर्व करा है, जब पी साइलो सब ग्रुप है वो हर जगह यूनिक आया है, पर एक हमें काउंटर एग्जांपल मिल गया जहाँ पे क्यू साइलो सब ग्रुप यूनिक नहीं आ रहा था। ठीक है, तो कभी भी एग्जांपल लेके हम डिस्कार्ड कर सकते हैं, टिक नहीं कर सकते। जब सारे डिस्कार्ड हो जाए, एक बच जाए, फिर टिक कर सकते हैं उसे। Find the number of elements of order 2 in the symmetric group S4 please mute yourself of all permutations of the 4 symbols 1 2 3 4. सिक्स आएगा इसका आंसर। 6 कैसे? 4p2 डिवाइड बाय r। 4p2 divided by 2 तो 1 by 2 into 4 factorial upon 2 factorial 24 by 4 6। ये तो आपने सिंपल 2 साइकिल देखा। अच्छा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2 है, ऑर्डर 2 होना चाहिए। तो ऐसे भी हो सकता था ना, मैंने बताया था कि 4 सिंबल्स कंप्लीट होने चाहिए, 2 साइकिल 1 साइकिल 1 साइकिल ऐसे करके। अच्छा, वो फॉर्मूला लगा देते हैं। हाँ, जैसे 1 2 होता है तो 3 4 इस तरीके से। क्या मिस्टेक करी मैंने, एक मिनट।
ये सेम नहीं आएगा? एक सेकेंड, कल भी करा था हमने ऐसा ना, मुझे लग रहा हाँ है। एक मिनट, हाँ, सेम 6 ही आ रहा था तब भी। 6 + 3 9 आया था ना। अच्छा, तब वो ऑर्डर उसके थे 4 ऑर्डर के। फॉर ऑर्डर के थे वो। कि हमने एक 4 का ले लिया था और एक हमने 2 के बना लिए थे ना। अच्छा, एक बात सोचो कि जब 2 साइकिल वाला बनाते हैं, इसका ऑर्डर कितना है? LCM ऑफ 2 and 2 ना। 2 ही होता है ना ऑर्डर। LCM इस वाले साइकिल का और फिर इस वाले साइकिल का। दिस मीन्स कि ये वाला तो हमने कर लिया, हाँ सेम ही आएगा, इधर भी 6 ही आएगा वो वाला फॉर्मूला यूज़ करके भी। तो 2 साइकिल ये वाला रह गया ना, सारी पॉसिबिलिटीज़ लेनी पड़ती हैं। सो दिस विल बी 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 to the power 2 into 2 फैक्टोरियल, 24/8 3। सो 6 + 3 9। क्लियर हुआ? एक तो देखो एस टाइप की साइकिल हो जाती है ना, एक सिंपल 1 2 वाली, एक हो जाती है 1 2 3 4 2 साइकिल वाली। तो इनका दोनों का ही एलसीएम सॉरी ऑर्डर 2 रहता है ना, तो इसके अकॉर्डिंगली निकालेंगे सारी पॉसिबिलिटीज़ को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि S4 के 24 एलिमेंट्स हैं, तो ऑर्डर 2 के सारे 24 एलिमेंट्स लिखना और फिर उसमें से देखना कि 2 ऑर्डर कौन सा है, वो लेंदी प्रोसेस है। नेक्स्ट, लेट S7 denote the symmetric group of all permutations of the symbols one, two, three, four, five, six, 7. Pick out the true statements. A part, S7 has an element of order 10. B part, S7 has an element of order 15. C part, the order of any element of S7 is at most 12. MSQ.
ये कैसे करेंगे? So तो बना के 2 2 1 1 2 2 साइकिल करके तो बहुत लंबा नहीं होएगा, उसको चेक करना। first option is saying that S7 has an element of order 10. Simply see that when order 10 is possible. Order 10 is possible if I have a 10 cycle or I have a 5 cycle and 2 cycle, because their LCM is 10 na. Only these two possibilities are there na for order 10. In S7, 10 cycle is not possible because there are only 7 symbols. So this possibility is discarded. This possibility is there na, 5 cycle into 2 cycle. I can have like this 1 2 3 4 5 6 7. Order of this is LCM of 5 and 2, which is 10. So it is saying that S7 has an element of order 10. Yes, definitely it has an element of order 10. So A part is correct. Okay. B part, because it is asking only whether it has order 10 element or not. It is not asking number of elements of order 10 in S7. So simply I have seen this, because 2 3 4 5 6 and 1 7, many possibilities are there. Okay. Next it is asking that S7 has an element of order 15. Now order 15 is possible if I have a 15 cycle or if I have a 3 cycle into 5 cycle. For order 15 only these two possibilities are there, as S7 has only 7 symbols, so this option is discarded. In this option also 8 symbols will be needed, but I only have 7 symbols, so this option is also discarded. C part, the order of any element of S7 is at most 12. We have already seen that this has 10 order element, 12 order. Now order 12 is possible by taking 12 cycle, or I can take 4 cycle into 3 cycle. This is not possible. This can be. So order 12 से बड़ा तो कोई भी नहीं आएगा, हमने क्लियरली देख ही लिया है. Order 15 पॉसिबल नहीं था हमारा. So option C is correct. Is this clear? Yes, ma'am. ठीक है. इस टाइप के क्वेश्चंस काफ़ी बार पूछ ले जाते हैं और आसान अप्रोच है, बस एक बार देखना है कि ऑर्डर एलसीएम से ही पता लगना है हमें कि कैसे कैसे पॉसिबल है, कैसे कैसे साइकिल लेके. नेक्स्ट, the number of elements in the conjugacy class of the 3 cycle 2 3 4 in the symmetric group S6 is A part 20, B part 40, C part 120, D part 216.
So what was the formula for this? 6 factorial. हमने कल पढ़ा ना, ऑर्डर ऑफ जी अपॉन ऑर्डर ऑफ क्लास, कंजुगेसी क्लास ऑफ एलिमेंट्स करके अलग अलग निकालने पड़ेंगे ना इसमें। नहीं, conjugacy जैसे class means all elements have same cyclic structure. तो 2 3 4 है, एक और इसका साथ में कंप्लीट करेंगे ना 3 साइकिल का, या पहले 1 1 करके फिर 2 1 करके 3 3 करके फिर ऐड करेंगे। नहीं, सिंपल ऐसे याद रख लो, जब भी सिंपल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द कॉन्जुगेसी क्लास ऑफ अ पर्टिकुलर साइकिल पूछा जाए तो सिंपल फॉर्मूला जो एन पी आर बाय आर ये वाला सीखा है वो अप्लाई करना। और अगर उसने कुछ लेंथ वगैरह करके पूछ लिया रिपीटिंग जो मैंने फॉर्मूला बताया था कि इफ सिग्मा इज इक्वल्स टू सिग्मा 1 टू द पावर n 1, सिग्मा 2 टू द पावर n 2, सो ऑन टिल sigma k to the power nk, where sigma I is permutation of length li repeating ni times, then number of such sigma in ln sn, तब वो लेंथ वाला फॉर्मूला लगाना। यहाँ पे सिंपल नंबर ऑफ 3 साइकिल्स बताने हैं। 40 आएगा इसका आंसर। यस 40, 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 into 3 factorial, 6 into 5 into 4 into 3 factorial, 3 into 3 factorial, 40. Let G be a non-cyclic group of order 57, then the number of elements of order 3 in G is
नहीं आ रहा समझ में कैसे करेंगे। अबेलियन तो है ये, और नॉन साइक्लिक है, तो दैट मीन्स इसमें जो ऑर्डर ऑफ एलिमेंट है वो ग्रुप के इक्वल तो नहीं होगा। हिंट दे देती हूँ, अप्लाई साइलोस थर्ड थ्योरम। उसमें फिर नंबर ऑफ साइलो 3 सब ग्रुप देखने सिखाए थे मैंने, जैसे वो कितने भी आ जाते थे, जैसे H1 H2 H3 एंड सो ऑन, जितने भी आ गए उसमें ऑर्डर 3 के कितने हैं वो काउंट करने मैंने सिखाए थे। वही आंसर है इसका, उस अप्रोच से करना। तो इसमें तो फिर 1 ही आएगा ना, K0 तो N3 1 आएगा, तो 1 ही आंसर है इसका। Order of G is 57 means 3 into 19 and I need to find number of 3 silo subgroups of G first. जस्ट अ मिनट, K6 भी हो सकता है। तो So N3 is equals to 1 plus 3K which divides 19. So K can be either 0 or 16. So N3 is 6 होगा, 16 नहीं। sorry 6. N3 is 1 और 19। Okay. But But as group G is non-cyclic, so it cannot be 1 because G is non-cyclic. So N3 is 19. This means that H1, H2 up to H19 and its N3 means it will have 3 elements, huh? Like this. Its order is 1 and rest of the elements are of order 3. So H1 has 2 elements of order 3. So these 19 subgroups will have 2 into 19, 38 elements of order 3. So this is the answer. वही मैं कह रही हूँ ना, जो सब हमने सीखा है घूम फिर के कहीं ना कहीं वो पूछ लेगा, कभी कैसे तो कभी कैसे, तो वो अप्रोच याद रखनी ज़रूरी है थोड़ी। नेक्स्ट, which of the following numbers can be orders of permutation sigma of 11 symbols such that sigma does not fix any symbol? Does not fix any symbol means ऐसा कहीं पे भी नहीं होगा कि सिर्फ इस टाइप का साइकिल आपके पास आ रहा हो कि 1 goes to 1, इसका मतलब है कि फिक्स कर रहे हैं। A part 18, B part 30, C part 15, D part 28. Part C.
सिंपली इन ऑर्डर से हमने ये चेक करना है कि क्या हम ऐसे साइकिल्स बना पा रहे हैं जो किसी भी सिंबल को फिक्स ना कर रहा हो, सिर्फ ये चेक करना है। एक बार बताना दोबारा, फिक्स का मतलब क्या है? जैसे 11 सिंबल्स तो सिंपली 11 फैक्टोरियल हो गया ना। हाँ, फिक्स कर रहा है जैसे मतलब बड़ा जैसे ऐसे नहीं कर लेते कि 1 2 3 एंड बस ये 3 साइकिल है और फिर रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स 4 5, इस तरीके से हो गया ना कि वो खुद पे ही मैप हो रहा है हर एक एलिमेंट। अच्छा, इसका मतलब है फिक्सिंग। मतलब अपने से ना मैप होके वो किसी और पे मैप हो सकता है, हाँ ये कहने का मतलब ये है ना। हाँ, मतलब लेंथ 1 वाला साइकिल कहीं ना आए। BCD व्हाई नॉट ए? क्योंकि इसमें 18 9 और 2 बनेगा ना, 9 टू द 18, हम्म तो इसमें 9 और 2, एक 2 का बना, एक 9 का बना। हाँ, हो सकता है 9 का, पर एक मिनट, सिंपल है। 9 साइकिल मीन्स 1 2 हो 3 सकता है। 4 5 6 7 8 9 और एक 10 11। हाँ, हो सकता है, ये भी हो सकता है। सो ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। हम्म।
15, 3 and 5. या फिर 3 साइकिल, 3 साइकिल, 5 साइकिल. हम्म 3 एंड 5 साइकिल नहीं ले सकते ना. 3 और 5 लिए तो 8 सिंबल्स यूज हुए. एक बाकी और 3. 3 साइकिल का आएगा ना फिर. हाँ, अदरवाइज तो फिक्सिंग हो जाएगी. 28. 7 साइकिल, 4 साइकिल. So answer is options A, B, C, D. Question number 8. Let G be a simple group of order 168. What is the number of subgroups of G of order 7? A part 1, B part 7, C part 8, D part 28. इसमें अगर हम उससे करेंगे इंडेक्स से, तो ऑर्डर ऑफ जी डिवाइड बाय ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप 7 ना. तो अगर जी सिंपल है तो ऑर्डर 2 का तो कोई होगा नहीं, वो ऑर्डर 2 वाला डिस्कार्ड करेंगे इसमें से. देखो, जब भी सिंपल लिखा आ जाए ना तो साइलो की तरफ जाया करो. अच्छा, अब बस साइलो थर्ड थ्योरम लगा लो, उससे आंसर मिल जाएगा. ऐसे रिलेट कर सकते हो ना, कि अगर n7 निकालें, if it is 1 then it is unique, then it will be normal, then it will not satisfy the definition of simple group, so it will be not simple. तो इस वजह से जब भी सिंपल लिखा है तो साइलो की तरफ ही जाना है हमने.
तो 8 आंसर आएगा. Yes. Order of group G is 168, which is 7 into 24. 24 की भी प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते हैं. 7 into 12 into 2. 12 into 2. Yes, yes. 2 cube into 3. ठीक है. So n7 is equals to 1 plus 7k, which divides 24. So k is either 0 or 1. This means that n7 can be 1 or 8. If n7 is 1, then we will have unique silo 7 subgroup. Means it is normal. But G is given to be simple. So n7 is not equal to 1. Therefore n7 is equals to 8. So there are 8 subgroups of G of order 7. Answer is C. Let G be a group of order 45. Then A part, G has an element of order 9. B part, G has a subgroup of order 9. C part, G has a normal subgroup of order 9. D part, G has a normal subgroup of order 5. MSQ.
डी ऑप्शन तो है इसमें करेक्ट। और ऑर्डर 9 का सब जनरली इसमें थ्री साइलो तो होगा ना, थ्री साइलो तो नॉर्मल होगा। और ई स्क्वायर सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 9 के लिए ऑर्डर ऑफ जी डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप 5 आएगा। D part is correct. Now N3 1 plus 3k divides 5. K is 0. 1 आएगा। Again unique normal. C is also correct. बट ये 3 साइलो हुआ, 3 साइलो ग्रुप हुआ ना, ऑर्डर 9 है इसलिए। हाँ तो ये 3 साइलो सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 9 है ना। 9 हो गया, हाँ ठीक है। C is also correct. D is also correct. What about A and B? तो अगर नॉर्मल सब ग्रुप है तो सब ग्रुप तो है ही ना, बी भी करेक्ट होना चाहिए। Yes. अब एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 9 के लिए इसका वो बनाना पड़ेगा ना हमें सब ग्रुप से, पर इसमें या फिर एक रिजल्ट हमने पढ़ा था कि अगर G आपके पास कोई ग्रुप है and order of G is equals to P square into Q such that Q does not divides P square minus 1 जहाँ पे P and Q are distinct primes, then G is abelian. नहीं एबिलियन तो ये है ना। So abelian होगा तो all the subgroups of G are normal subgroups. And converse of Lagrange's theorem is true for finite abelian groups. Which states that Yes. for every divisor D of order of group G, there exists a subgroup of that order now since 9 divides 45 and 5 divides 45, so ये तो मैंने वापस से आपको बी सी डी के लिए ही बताया अप्रोच कि इस अप्रोच से भी जा सकते थे, साइलो से भी जा सकते थे, इससे भी जा सकते थे। G has a subgroup of order 5 and order 9 and both are normal subgroups. So this is alternative approach for this. Now A part, G has an element of order 9. So G can be isomorphic to Z3 cross Z3 cross Z5. Order of this is simply
order of Z3 into order of Z3 into order of Z5. So 3 into 3 into 3 into 5, which is 45. But Z3 cross Z5 does not have an element of order 9. ये मैंने नहीं सिखाया ना कि अगर आपके पास कोई ये डायरेक्ट प्रोडक्ट फॉर्म में हो तो इसमें किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर कैसे देखा जाता है, ये मेरे ख्याल से रह गया। नहीं बताया था वो तो डायरेक्टली जैसे Z3 है उसको हम 0 1 2 करके हम देखेंगे ना एडिशनल हाँ, मॉड्यूलो से। फिर हाँ, एक मैं बताती हूँ और एक बेटर वे इसका, एक सेकेंड। इस वाले का अभी 1 मिनट बाद देखते हैं, पहले मैं इन जनरल एक्सप्लेन कर दूँ कैसे निकालते हैं। So if G is any group like Zn cross Zn where GCD of m comma n is not equal to 1, then to find the number of elements of any order, say k, we take those elements a comma b in Zn cross Zn such that order of A divides m and order of B divides n, and LCM of order of A and order of B is equal to k. Then कैसे फाइंड करेंगे, जैसे अगर मुझे फाइंड करना नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ order 2 in G is equals to Z2 cross Z2. So firstly we will take the pairs A comma B such that A divides 2 and B divides 2 and LCM of A comma B is 2. Okay. Now Z2 cross Z2 possibilities are one comma 2, 2 comma 1, 2 comma 2. Simply see that A divides 2, B divides 2. Here A is 1, 1 divides 2, 2 divides 2, 2 divides 2, 1 divides 2, 2 divides 2, 2 divides 2. Now number of elements corresponding to 1 comma 2. This is simply phi 1 into phi 2. Phi 1 is also 1, phi 2 is also 1, so this is 1. Then corresponding to 2 comma 1. Phi 2 cross phi 1, 1 cross 1, this is 1. Then 2 comma 2, this is phi 2 cross phi 2, this is 1 cross 1 equal to 1. ठीक है, अब ये करने का रीज़न क्या है हमारा, अदरवाइज अगर हम करेंगे तो काफ़ी मतलब अजीब सा ही नहीं हो जाएगा। इस 2 का ऑर्डर Z2 में देख ही नहीं पाएंगे, Z2 में तो एलिमेंट्स ही 0 1 है। सो जब भी हमें ऑर्डर देखना है तो इसी 5 वाले वे से देखना है। ठीक है, एक और करके दिखाते हैं। तो टोटल कितने एलिमेंट्स हो गए, 3 एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2। ठीक है, अब अगर यहाँ पे देखना हो
Z3 cross Z3 cross Z5 does not have an element of order 9. ऑर्डर 9 के लिए ट्रिपलेट लेना पड़ेगा ABC इस फॉर्म में, such that order of A divides 3, order of B divides 3 and order of C divides 5. So, ऐसा कोई एलिमेंट मुझे बता सकते हो जो इनको सेटिस्फाई करे? फिफ्टीन आएगा। 15 आएगा। द ऑर्डर ऑफ इट डिवाइड्स 3, अच्छा 1 आएगा फिर तो। 1 आएगा ना। और एक और बात थी कि एलसीएम ऑफ ऑर्डर ऑफ ए, ऑर्डर ऑफ बी एंड ऑर्डर ऑफ सी, इट शुड बी 9। ऐसा कोई भी एलिमेंट हमें नहीं मिल पाएगा कि ऑर्डर 9 आ जाए। जैसे ऑर्डर 2 की पॉसिबिलिटीज देखी थी, तो 1,2, 2,1, 2,2। ठीक है, जैसे एक और मुझे एक करके दिखाओ, अब हम ये डिस्कस कर ही रहे हैं तो आप मुझे बताओ नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 5 इन ग्रुप G इज इक्वल्स टू Z5 क्रॉस Z10। ये वाला मुझे यहाँ करके बताओ, एक मैं होमवर्क दे रही हूँ क्योंकि ये भी इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2 इन ग्रुप G इज इक्वल्स टू Z2 क्रॉस Z2 क्रॉस Z2।
32 आएगा इसका आंसर। 32 नहीं, पॉसिबिलिटीज क्या क्या आई? 5 5 एंड 5 10। A अच्छा 1 divides 5 भी लेंगे ना, 1 5 5 10 भी ठीक है। A divides 5 and B divides 10 and LCM of A comma B is equals to 5. So possibilities will be 5 comma 1, 5 comma 5, 1 comma 5. 5 comma 10 आप ले रहे हो, उसका LCM 5 थोड़ी है। ठीक है। इसका आ जाएगा 5 5 क्रॉस 5 1 which is 4 into 1 4. This will be 5 5 into 5 5. 4 into 4 16. आएगा। इस वाले का 5 1 into 5 5 1 into 4 24 आंसर आएगा। yes 24 4 plus 16 plus 4 24. ठीक है, इसका निकाल के मेरे को कल बताना इस वाले का। ठीक है, मैं लिख लेती हूँ क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन है? ये वाला नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2 इन ग्रुप जी इक्वल टू Z2 क्रॉस Z2 क्रॉस Z2। और एक और मैंने कल दिया था, वो कर लिया था, क्लास इक्वेशन S5 वाला। S5 वाला ना, देख मैंने पूरा नहीं करा, उसको आज करूंगी कंप्लीट। कुछ थे डाउट्स, वो क्लियर हो गया आज वाली क्लास में। चलो ठीक है, करके ये दोनों कल एक बार मेरे को इसके आंसर्स बताना। ठीक है, फिर कल से हम रिंग थ्योरी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ओके मैम।